Hello, dear students. Welcome to the English class. Today's lecture will introduce you to the literary devices in poetry. Now, what are the literary devices? Actually, it's a guide. It's a guide to the techniques poets use to shape meaning, create rhythm, and bring language to life. आप पोइट्री जब भी रीड करते होंगे, आपने उसमें बहुत से ऐसे टर्म्स देखे होंगे जिससे पोइट्री आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आती होगी. सो दीज अट्रैक्टिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड लिटरेरी डिवाइसेस और द पोइटिक डिवाइसेस. और ये कोई एक दो फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, बल्कि ये बहुत ही कॉमन पंक्चुएशन मार्क से लेकर बहुत ही पावरफुल कॉन्ट्राडिक्शंस तक चले जाते हैं. पोएटिक डिवाइसेस कुछ ऐसे स्पेशल टूल्स हैं जिससे हम अपनी पोइट्री को बहुत इंटरेस्टिंग बना लेते हैं और इससे हमारे इमोशंस को स्पार्क मिलता है और इसके अलावा रीडर्स के माइंड में एक बहुत ही क्लियर पिक्चर पेंट हो जाती है जिससे वो तमाम इमेजिनेशंस अपने माइंड में क्रिएट कर सकता है और पोइट्री को बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड कर सकता है. In this lecture, we are going to discuss these different poetic devices: caesura, enjambment, alliteration, juxtaposition, simile, personification, imagery, symbolism, euphemism, oxymoron. Now first come to the caesura. What is caesura? एक ऐसे डेलिब्रेट पॉज को कहते हैं जो जानबूझकर एक ऐसा ब्रेक, एक ऐसा पॉज दिया जाता है पोइट्री की लाइन के अंदर ही. और ये क्रिएट किसकी मदद से किया जाता है? एक पंक्चुएशन मार्क की मदद से, जैसा कि कॉमा, फुल स्टॉप और डैश. This example will clear your understanding. To err is human, to forgive divine. Now, which one is the punctuation mark here? This one is the punctuation mark. This is a semicolon. So, this semicolon is the caesura. Look at this example. I hear it. Here, the poet is using this comma, and this comma is also called caesura in the deep heart school. And then he drank dew from our convenient grass. Here this dash shows a caesura. The words are lovely. Again this comma is a caesura, and all these elements are enhancing the interest of poetry. So caesura हमारी पोइट्री को बहुत ही अच्छा रिदम देने में हेल्प करता है और इसके इंपॉर्टेंट आइडियाज पर एम्फेसाइज करने में हेल्प करता है. रीडर्स का एक बहुत ही अच्छा फ्लो बना देता है रीडिंग के लिए और इस तरह से तमाम इंपॉर्टेंट थॉट्स पर एम्फेसाइज करना इजी रहता है. सस्पेंस और इमोशंस भी हम कह सकते हैं क्रिएट कर सकता है और इन तमाम चीजों से हमारी पोइट्री बहुत ही नेचुरल साउंड करने लगती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एंजाममेंट. नाउ व्हाट इज एंजाममेंट? जब आप एक लाइन ऑफ पोइट्री रीड करते हैं और उसमें हमारी थॉट जो है वो कॉन्टिन्यूसली नेक्स्ट लाइन पर भी कन्वर्ट हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड एंजाममेंट. एक्चुअली ये एक लाइन ऑफ पोइट्री जब किसी नेक्स्ट लाइन पर भी रन करे और बगैर किसी पॉज की करे. हियर वी टॉक अबाउट अ पॉज, बट हियर देयर इज नो नीड ऑफ पॉज. वो अपनी नेक्स्ट लाइन पर थॉट को कन्वे करता है, दैट इज कॉल्ड एंजाममेंट. सो it is a poetic device in which a sentence or idea continues from one line to the next without a pause or punctuation mark at the end of the line. Now, look at this line. I think that I shall never see a poem lovely as a tree. We are talking about this line. Here our thought is incomplete and we are conveying this thought to the next line. So, this is called enjambment. एंजाममेंट यानी उस वक्त होता है जब पोइम की एक लाइन का थॉट या सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो और पहली लाइन के एंड पर कोई फुल स्टॉप, कॉमा या पॉज ना हो. It creates a smooth flow of ideas. It makes the poem sound natural and conversational. It builds suspense and curiosity and encourages the reader to move quickly to the next line. It connects ideas across lines. There are so many advantages of this. That's why poets use this enjambment in their poetries. Now look at the example. The sky was dark and full of stars that guide travelers through the night. Here there is no pause and the poet and the thought is converting to the next line also. And then he drank a dew from a convenient grass. Here we are not looking at any punctuation mark or any pause. यहाँ पर भी हमारी thought next line पर कन्वर्ट हो रही है, जा रही है. That's why this is called
enjambment. Hopefully the concept should be clear now. Now come to the next point, that is alliteration. Now what is alliteration? Alliteration एक ऐसी poetic device है in which same initial consonant sound is repeated in closely placed words. आप एक लाइन पढ़ते हैं और उसमें एक साउंड, एक लेटर बार बार अपनी साउंड को रिपीट कर रहा है, बार बार एक लेटर रिपीट हो रहा है या बार बार एक साउंड रिपीट हो रही है, और वो साउंड जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा एडजेसेंट या फिर एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज है, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन. एलिट्रेशन तब होता है जब किसी सेंटेंस या वर्स में सेम साउंड, यानी अक्सर फर्स्ट लेटर ही यहाँ पर रोल प्ले कर रहा होता है और वो बार बार रिपीट होता है और एक ही लाइन या क्लोज वर्ड्स, करीबी वर्ड्स में ही वो चीज हो रही हो, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन. If you will look at the example, this will make your concept clear. Beautiful birds bring bright blessings. Beautiful birds bring bright blessings. B, b, b. The sound is repeating. यहाँ पर क्या हो रहा है? This is also creating musical effect and it makes line more catchy and memorable. आपने देखा होगा बहुत ही रिदम और ब्यूटी क्रिएट हो रही है इस एग्जाम्पल को रीड करने के बाद. कुछ वर्ड्स आइडियाज पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है. ओके, लुक एट, रीड द नेक्स्ट लाइन. Peter Piper picked the pack of pickled peppers. Even the reading of this line is not very easy. The P sound is repeated again and again. This is a very strong example of alliteration and very a classic example of alliteration. Look at the next example. She shells by the seashore. बहुत ही ट्विस्ट आपकी जबान पर आ जाता है जब आप एलिट्रेशन का रेपिटेशन, यानी लेटर्स का रेपिटेशन एज एन एलिट्रेशन लाइंस में देखते हैं. यहाँ पर भी आपने देखा होगा श साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है. सो दिस इज द एलिट्रेशन. और अगर आप कोई और भी डिफरेंट एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल द विंड विस्पर्ड वाइडली थ्रू द वुड्स, तो आपने देखा होगा व साउंड जो है, W की साउंड यहाँ पर हमने देखा कि बार बार रिपीट हो रही है. सो दैट इज ऑल्सो एन एलिट्रेशन. अभी हमने इसकी बात की कि इससे हमारे पास कौन कौन से इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं. रिदम, म्यूजिकलिटी और एम्फसाइज क्रिएट होता है, और अटेंशन कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स और आइडियाज पर हमारी ड्रॉ हो रही होती है. पोएट एलिट्रेशन का यूज करते हैं अपनी लाइंस को यूनिफाई करने के लिए, एक बहुत ही प्रॉपर स्पेसिफिक मूड को बिल्डअप करने के लिए, या फिर लैंग्वेज को मेमोरेबल बनाने के लिए. Okay, now comes to the next point, that is juxtaposition. What is juxtaposition? जब हम दो या दो से ज्यादा आइडियाज, करेक्टर्स या सेटिंग और फ्रेजेस को साइड बाय साइड रख देते हैं लाइक दिस, जैसे हमने यहाँ पर वेल्थ और पॉवर्टी को, यहाँ पर हमने दोनों चीजों को साइड बाय साइड मेंशन किया. अब यहाँ पर हमारा क्या मकसद है, ताकि हम एक कंट्रास्ट को हाईलाइट कर सकें. उन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या कंट्रास्ट है. इसका मेन पर्पज यही है कि हम यहाँ पर एक बहुत ही डेलिकेट सी जो उनमें डिफरेंस है, डेलिकेट डिफरेंस है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को भी समझ सकें. सो नुअंस्ड अंडरस्टैंडिंग हर एलिमेंट का हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं juxtaposition के थ्रू, जहां पर juxtaposition places two or more ideas, characters, settings or phrases side by side to highlight their contrast or differences. या फिर हम यहाँ पर पर्टिकुलर क्वालिटीज को एम्फेसाइज करना चाह रहे होते हैं दोनों चीजों को डायरेक्टली कंपेयर करके. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स. यहाँ पर ये डिकन्स कह रहे हैं और ये दो अपोजिट आइडियाज यानी बेस्ट और वर्स्ट दोनों को साइड बाय साइड रखा गया है इनके कंट्रास्ट को हाईलाइट करने के लिए, जिससे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीनिंग कंपैरिजन के थ्रू क्रिएट हो रहा है. सो लुक एट द अनदर एग्जांपल्स. द रिच मैन एट अ फुल मील व्हाइल द पुअर चाइल्ड लुक्ड एट द एम्प्टी प्लेट्स. यहाँ पर आप देख रहे होंगे रिच एंड पुअर सिचुएशंस को साइड बाय साइड रखकर उनकी इनइक्वालिटी और उनकी इनइक्वालिटी मेंशन की गई है और उनका कंट्रास्ट शो किया गया है. नेक्स्ट में हमारे पास एग्जांपल में आ रहा है शी स्माइल्ड थ्रू टीयर्स. अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि यहाँ पर एक डिफरेंट वर्ड यूज किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर उसी का एक डिफरेंट वर्ड दिखाया जा रहा है, शी स्माइल्ड थ्रू टीयर्स. सो यहाँ पर हैप्पीनेस और सैडनेस को एक के साथ दूसरे को रखकर इमोशनल डेप्थ क्रिएट करने की कोशिश की गई है. नेक्स्ट लाइन में आपको बताया जा रहा है a small spark can start a huge fire. Here we can say small and huge are placed together
to show contrast in size and power. Look at the last example. Light and darkness lived in the same house. Light and darkness. So these are the opposite ideas that are placed side by side to create strong imagery and meaning. Now come to the next literary device, that is simile. Simile is the comparison between two different things using like or as. और जब हम यहाँ पर दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं और मोस्टली हम वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं लाइक और एज, दैट इज कॉल्ड अ सिमिली. फॉर एग्जाम्पल, दे लुक्ड लाइक फ्राइटेंड बीड्स, आई थॉट. हियर विच वन इज द सिमिली? लाइक हमारे पास यहाँ पर दो चीजों को कंपेयर कर रहा है और ये एक कंपैरिजन है जिसका मकसद मीनिंग को बहुत ज्यादा डेप्थ देना है और एक बहुत ही क्लियर रिलेटेबल कंपैरिजन क्रिएट करना है. Personification, we will look these two side by side and then we will look at the examples, more examples. Personification, what is personification? आपको इस वर्ड से शो हो रहा होगा. जब हम किसी नॉन ह्यूमन क्वालिटीज को ह्यूमन क्वालिटीज के हवाले करते हैं, personification to give human qualities to animals, objects or ideas. That is called personification. He stirred his velvet head. He stirred his velvet head. We are talking here about a bird. The bird's head is described with human-like softness, adding tenderness to its action. That is called personification. Now, make your concepts more strong with the help of these examples. He runs like a cheetah. The water was as cold as ice. Hopefully, you are getting my point. Like, as, all these are the use of similes. She sings like a nightingale. His hands were as cold as snow. The baby slept like a log. The clouds are like cotton in the sky. So all these are the examples of using simile. Look at these examples of personification. The wind whispered through the trees. The wind. Whispering is not the quality of wind, but here we are describing this wind as a human quality, so that is called personification. Time flies quickly. The angry storm attacked the village. बहुत ही कॉमनली हम इनका यूज कर रहे होते हैं, यानी हम नॉन ह्यूमन को ह्यूमन क्वालिटीज प्रोवाइड करते हैं और इसको हम लिटरेचर में पर्सोनिफिकेशन का नाम देते हैं एज अ लिटरेरी डिवाइस. नेक्स्ट कम्स इमेजरी. इमेजरी जैसा कि वर्ड से भी आपको शो हो रहा होगा, यानी इमेजरी क्या है? एक ऐसी पोएटिक डिवाइस है जिससे हम पिक्चर्स क्रिएट कर देते हैं रीडर्स के माइंड में और ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि मोस्टली अपील कर रहे होते हैं हमारे 5 सेंसेस से, लाइक साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच. So this is the descriptive language that appeals to the senses and creates vivid mental pictures for the reader. यानी आपके माइंड में क्लियर मेंटल पिक्चर जो है वो क्रिएट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, he bit an angel worm in halves and ate the fallow raw. बहुत से ऐसे यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन इमेजरी क्रिएट कर रहा होता है, आप नोट करेंगे. यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इमेजरी जो है वो हेल्प करता है यू टू सी, फील, हियर, स्मेल एंड टेस्ट. आप पोइट्री में जब वो लाइन पढ़ते हैं तो आप उस चीज को या तो अपनी नजर से देखने लगते हैं या फिर उसको अपने हियरिंग सेंसेस सुनने लगते हैं या फिर स्मेल करते हैं या उसको पर्सनली टेस्ट करने लगते हैं. दैट इज कॉल्ड इमेजरी. सो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ इमेजरी. हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखेंगे. The first example is the golden sunset behind the dark mountains. आप यहाँ देख सकते हैं द गोल्डन सनसेट एक विजुअल इमेजरी, यानी एक विजुअल इमेजरी मीन सीइंग. आप किसी चीज को किस तरह से विजुअलाइज कर रहे हैं अपने माइंड के लिए. तो नेक्स्ट, ब्राइट स्टार्स ट्विंकल्ड इन द नाइट स्काई. अगेन दिस इज अ विजुअल इमेजरी. द बर्ड्स चर्प. यहाँ पे अब हम हियरिंग की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसे कहेंगे ऑडिटरी इमेजरी. थंडर, अगेन हमने यहाँ पर बात की है हियरिंग की, ऑडिटरी इमेजरी. थंडर रोड लाउडली इन द स्काई. The soft grass touched my feet. The soft grass touched my feet. This is touch. Tactile imagery हम इसको नाम देते हैं. The flowers gave a sweet fragrance. So यहाँ पर हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्मेल की बात कर रहे हैं. olfactory imagery हम इसको कह सकते हैं जहाँ पर हम स्मेल सेंस का यूज करते हैं. Like the same another example, the smell of fresh bread filled the kitchen. And the last one is the mango was sweet and juicy. This is
गस्टेटरी इमेजरी टेस्ट से रिलेटेड है. सो जैसा कि हम कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं द लेमन टेस्टेड सॉवर ऑन माई टंग, दैट इज द imagery. Okay, now come to the next literary device that is called symbolism. Symbolism किसे कहा जाता है? Look at this word. symbolize कर रहा होता है, यानी एक चीज किसी दूसरे चीज को symbolize कर रही होगी, उसको as a gesture, hint, clue पेश करेगी. That is called symbolism. जब कोई object, person या situation किसी दूसरे literal meaning को जाकर represent करता है, उसे कहा जाता है symbolism. और इसमें हम different layers add कर सकते हैं उसकी interpretation के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पोएम पढ़ रखी है, द बर्ड्स ग्रेसफुल अनट्रबल्ड फ्लाइट एट द एंड सिंबलाइजेस फ्रीडम, जब वो एंड पर मूव किस अंदाज से करता है, जिस तरह से पोएट ने डिफरेंट लिटरेरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके जिस अंदाज से उसे शो किया है, इट शोज इट सिंबलाइजेस फ्रीडम एंड सीमलेस नेचुरल वर्ल्ड contrasting with the human world's boundaries and limitations. So symbolism invites करता है readers को to look deeper, finding universal truths in specific images. The next is metaphor. मेटाफर क्या है? हमने पहले देखा था सिमिली, जहां पे हम दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे थे यूजिंग वर्ड लाइक और एज, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट कंपैरिजन का इस्तेमाल करेंगे और लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल फेदर्स रोड हिम सॉफ्टर होम. बर्ड्स फ्लाइट को यहाँ पर बोट से कंपेयर किया गया, ऐसी बोट जो कि रो करती हुई जा रही है, रोइंग अ बोट से हमने यहाँ पर इसको डायरेक्ट कंपेयर किया है. अनदर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं, द क्लासरूम वॉज अ जू, ये नहीं कहा गया द क्लासरूम वॉज लाइक अ जू, द क्लासरूम वॉज अ जू, टाइम इज अ thief. All these are the examples of metaphor. Look at the next figurative language, euphemism. Euphemism a mild or indirect expression होता है substituted for one considered too harsh or blunt. जब हम बात करते हैं बहुत ही हार्श वर्ड्स में, लेकिन अगर उसकी जगह कोई सॉफ्ट सा, कोई डेलिकेट सा वर्ड यूज कर लिया जाए, दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म. जो इतना ज्यादा हमारे माइंड को जाकर हर्ट ना करे, दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म. कुछ लेटर्स ऐसे हो सकते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं, कुछ फ्रेज ऐसे हो सकते हैं जो कि हम किसी हार्श लैंग्वेज की बजाय बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म. सो पास्ड अवे जैसा कि वर्ड यूज किया जाता है डाइट के लिए, लेकिन ये ज्यादा सॉफ्ट वर्ड है, डेलिकेट वर्ड है, सो दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म. इंस्टेड ऑफ फायर्ड, लेट गो. इंस्टेड ऑफ ओल्ड पर्सन, अगर हम सीनियर सिटीजन कहें तो वो ज्यादा अच्छा फील करवाएगा, दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म. सो यूफेमिज्म सॉफ्टन द इम्पैक्ट ऑफ डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन एंड मेक कम्युनिकेशन मोर पोलाइट. हमारी ओवरऑल कम्युनिकेशन बहुत ही पोलाइट हो जाती है और इस तरह से हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज जो हैं वो ज्यादा बेहतर तौर पर निखर कर सामने आते हैं. द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीमोरॉन. आपने ऑक्सीमोरॉन देखा था, इसमें हमने जक्स्टापोजिशन हमने देखा था. जक्स्टापोजिशन में हम दो चीजों को साइड बाय साइड रखकर कंपैरिजन पर ज्यादा हाईलाइट कर रहे थे, जबकि अगर हमने एक ही फ्रेज, एक ही लाइन में दो अपेरेंटली कंट्रोडिक्टरी टर्म्स को यूज किया हो, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन. एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जहां पर हम दो कंट्रोडिक्टरी टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन. यानी इनको कंबाइन कर दिया जाता है एक सेम फ्रेज में. यहाँ पर जैसे आपको दिखाया गया बिटर स्वीट, यहाँ पर जॉय जो है वो सोरो के साथ मिक्स कर दी गई है. एक साइलेंस जो है वो अगर किसी लाउड के साथ बहुत ज्यादा प्रोफाउंड नजर आता है, साइलेंस सो प्रोफाउंड इट फील्स लाउड. डेफनिंग डेफनिंग साइलेंस. जंबो श्रिम्प, लार्ज एट स्मॉल, यानी दो चीजों को, लेकिन वो एक चीज छोटी भी है और एक चीज बड़ी भी है, और हम एक सिंगल एक्सप्रेशन के अंदर दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन. सो टू अपोजिट वर्ड जो है वो कंबाइन टुगेदर, और ये एक बहुत ही शॉर्ट सी फ्रेज होती है और एक पैराडॉक्सिकल एक्सप्रेशन जो है वो क्रिएट कर रही होती है. इस अंदाज से हमने यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल्स शो की हैं. ओके, नाउ we will conclude this lesson by looking just at the summary. So literary devices are the poet's toolkit. Each one shapes how we experience a poem. Rhythm and flow create करने के लिए, sound and contrast create करने के लिए, figurative language हमने यहाँ use की, simile, personification, imagery, symbolism, ये सब चीजें हमारे literal meanings को depth create करती हैं. इसी तरह से euphemism and oxymoron ने हमारे लैंग्वेज को शेप आउट किया है, किस तरह से रीडर्स जो हैं वो फील कर सकते हैं और एक सब्जेक्ट के बारे में थिंकिंग रख सकते हैं.
With this, we conclude today's lesson. Thank you for watching and learning with me. May Allah grant you success, confidence and excellence in all your endeavors. Take care, keep studying, and I will see you in the next lecture. Allah Hafiz.